سبحان اللہ، یہ جبل رحمت ہے۔ یہاں پر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں پر دعائیں کی۔ آج ہم بھی یہاں پر دعا کر رہے ہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے یہاں پر دعائیں کرتے ہیں۔ ذکر قرآن پاک میں دوسرے سپارہ میں سورۃ البقرہ میں، ابھی آپ اپنے یہ رائٹ ہاتھ میں یہ مسجد ہے، مسجد مشعر الحرام۔ جس طرح میدان عرفات کے اندر مسجد نمرہ کی ابھی ہم نے زیارت کی تھی، اس کا تعلق بھی حج کے ساتھ ہے، اور اسی طرح یہ مسجد ہے، اس مسجد میں پورے سال میں نماز مغرب اور نماز عشاء اور اس کے بعد رات کا قیام حجاء کرام اس میدان میں کرتے ہیں، پھر فجر کی نماز یہاں پر ادا کرتے ہیں۔ جنت المعلیٰ کی دوسری جانب ہم یہ قبرستان کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیدھے آپ کی طرف پہاڑ جیسے شروع ہو رہے ہیں، اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پتھروں کی بنی دیوار نظر آئے گی۔ اسی کو نہر زبیدہ بولتے ہیں، جو ملکہ زبیدہ نے حجاء کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا۔ یہ آج کل کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اسلام کے ایک اہم ورثہ ہے، جو ملکہ زبیدہ نے حجاء کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا۔ سیدھے آپ کی طرف دیکھیں سب ساتھی، تو آپ کو یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو پتھروں کی بنی دیوار نظر آ رہی ہے، اور اس دیوار کے نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے۔ انہیں سوراخوں سے حجاء کرام پینے کے لیے، وضو کے لیے، طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں ابھی اتنا رش ہے تو حج کے دنوں کے اندر یہاں پر کتنا رش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی میدان عرفات ہے، میدان عرفات کی دوسری سائیڈ ہے جہاں پر جبل رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت میں موجود ہوں مسجد نمرہ، میدان عرفات کے اندر یہ مسجد نمرہ۔ یہاں پر حج کا خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ لفٹ وغیرہ لگائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے غار ثور کو فی الحال بند کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کے عشق پر قربان جائیں، کتنی بلندی پر یہ غار ہے۔ یہاں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر۔ الحمدللہ میں اس وقت مکہ شہر کے اندر موجود ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز گاڑی پر جو مکے کی زیارتیں کروائی جاتی ہیں، انشاءاللہ العزیز اس گاڑی پر ابھی بیٹھیں گے، اور مکے کی تمام تر زیارتیں جو ہیں وہ آپ کو ہم انشاءاللہ العزیز اپنی اس ویڈیو کے اندر کروائیں گے، خود بھی کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کے ساتھ آخر تک ضرور بنے رہیے۔ اب ہمارا ہوٹل جو ہے وہ ہے مسات السلور۔ اس کے یہ باہر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر گاڑیاں وغیرہ آ چکی ہیں۔ ابھی ہماری گاڑی آنے والی ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس میں بیٹھ کر آپ کو ساری زیارتیں کروائیں گے۔ گاڑی یہاں سے چل پڑی ہے، تو ابھی ہم آپ کو ساری زیارتیں کرواتے ہیں۔ مکہ شریف میں ہر طرف آپ کو پہاڑ ہی پہاڑ دکھائی دیں گے۔ اکثر یہاں پر راستہ بھول جاتے ہیں، چونکہ ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہوتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہاں جانا ہے۔ یہ جتنی آپ کو بڑی بڑی بلڈنگیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہیں، یہاں پر پہاڑ کو کاٹ کر یہ بلڈنگیں بنائی گئی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہاں پر پہاڑ کو کاٹا جا رہا ہے، پھر یہاں پر ان بلڈنگوں کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت ہے، ہر طرف آپ کو یہ بڑی بڑی گاڑیاں دکھائی دیں گی۔ یہ وہی گاڑیاں ہیں جو لوگوں کو زیارات کے لیے لے کر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے، شہر کی بڑی بڑی پہاڑیاں ہیں۔ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاجی صاحبان، سفر کی دعا پڑھ لیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے، جو آدمی سفر کی دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے۔ سب بھائی میرے ساتھ مل کے سفر کی دعا پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محترم حاجی صاحبان، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے عمرہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ گھر کا طواف کیا، صفا مروہ کیا۔
اور میں दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को बार बार अपने घर की ज़ियारत के लिए बुलाए और आने वाले हज की सआदत नसीब करें। ऐसा मेरी आवाज़ आ रही है सब साथियों को? देखिए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मक्कातुल मुकर्रमा, ये वो मुकद्दस शहर है, मुकद्दस सरजमीन है, जिस शहर के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल गुजारे। ये कोई आम जगह नहीं है। इस जगह पर वो लोग आते हैं जिनसे अल्लाह पाक खुश हो जाता है, राज़ी हो जाता है, उन्हीं को अल्लाह पाक अपने घर में बुलाता है। आज अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें लाखों करोड़ों मुसलमानों में से चुन के अपने घर में बुलाया और अपना मेहमान बनाया। देखिए भाई, इस मुकद्दस सरजमीन पर हदूद हरम के अंदर अगर कोई एक नेकी करता है, यानी एक बार सुबहान अल्लाह पढ़ता है, तो उसका स्वाब एक नहीं बल्कि 1 लाख के बराबर है। हदूद हरम के अंदर अगर कोई एक नमाज अदा करता है तो उसको 1 लाख नमाज पढ़ने का स्वाब मिलता है। देखिए भाई, ये चंद गिनती के दिन है, पता नहीं चलेगा, गुजर जाएंगे। आप अपना जो कीमती वक्त है इबादत में गुजारें, जिक्र अज़कार में गुजारें और कोशिश करें कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हरम शरीफ के अंदर गुजरे, क्योंकि अल्लाह पाक हरम शरीफ के अंदर हर वक्त 120 रहमतों का नज़ूल करता है। 60 रहमतें अल्लाह पाक उन लोगों पर बरसाते हैं जो अल्लाह ताला घर का तवाफ करते हैं। और तवाफ एक ऐसी इबादत है जो दुनिया के किसी कोने में नहीं हो सकती, सिर्फ इसी जगह पर होती है। और 40 रहमतें अल्लाह पाक उन लोगों पर बरसाते हैं जो अल्लाह ताला घर में नमाज अदा करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं। और 20 रहमतें अल्लाह पाक फ़कत उन लोगों पर बरसाते हैं जो खाना काबा को देखते हैं, ज़ियारत करते हैं। अगर आप 1 मिनट के अंदर 100 बार आंखें बंद करके दोबारा खोलें तो अल्लाह पाक हर बार 20 रहमतों का नज़ूल करता है। तो इसलिए आज इस बार आप अपना जो कीमती वक्त है इबादत में गुजारें, जिक्र अज़कार में गुजारें। आज हम मक्कातुल मुकर्रमा के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जा रहे हैं। ये वो मुकद्दस मकामात है जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम के तबा ताबिन के कदम मुबारक लगे। और इसी निस्बत से हम इन मुकद्दस मकामात को देखेंगे। आज इंशाल्लाह हम 17 से 18 मकामात की ज़ियारत करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारी ज़ियारत आ रही है वो है जबल सोर। जबल अरबी ज़बान में पहाड़ को बोलते हैं। मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे बुलंद पहाड़ जिसकी बुलंदी 5413 फीट है, जिसके ऊपर एक गार है, गार सोर, और उसको गारे यार भी बोलते हैं कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मक्का से मदीना हिजरत की तो उस गार के अंदर आकर 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था। ये क़याम कब किया? जब मुशरिकीन काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करते थे, तकलीफ पहुंचाते थे। वो तंग क्यों करने लगे? उन्होंने देखा कि जो भी मुसलमानों का नबी के पास जाता था वो उन्हीं का होकर रह जाता था, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता था, कलमा पढ़ लेता था। उनको ये बात नागवारा लगी कि अगर इसी तरह ये इस्लाम फैलता रहा, दीन इस्लाम में लोग दाखिल होते रहे, तो हमें तो किसी ने पूछना था कि नहीं, हमारी तो बादशाहत खत्म हो जाएगी। उस वक्त अबू जहल मक्का का सरदार था। सीरत की किताबों में लिखा है, उलमा इकराम से सुन के आए होंगे कि अबू जहल ने 101 सरदारों को इकट्ठा किया और इकट्ठे होकर एक मीटिंग की। उसके अंदर फैसला किया कि आज हम सब लोग इकट्ठे होकर हमला करेंगे। इस चीज़ की खबर अल्लाह पाक ने हज़रत जबरील अलैहिस्सलाम के जरिए दी कि मेरे नबी को जाकर आज पैगाम दे दो कि आज रात अपने बिस्तर पे न ठहरे। ये मक्का के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करेंगे, तकलीफ जाएंगे। अल्लाह के नबी एक अमानतदार शख्स है। देखिए, वही जो मुशरिकीन काफिर थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानतें भी रखते थे और वही जान के दुश्मन बने। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों की अमानतों को लुटाने के लिए हजरत अली को अपने घर में बुलाया। कहा कि अली, एक रात मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, सुबह ये अमानतें मक्का वालों को दे के मदीने चले आना। हजरत अली वो शेर खुदा, अल्लाह का शेर का लक़ब क्यों दिया गया कि जब जंग होती थी दुश्मन को अपनी तलवार से ऐसे काटते थे जैसे गाजर मूली काटा जाता है। हर वक्त मौत की फिक्र में रहते थे कि किस वक्त मेरी मौत वाक़ई हो जाए। एक नमाज अदा की तो वो सोते पता नहीं दूसरी नमाज मेरे नसीब में है या नहीं। रात को बिस्तर पर सोए तो सोते पता नहीं सुबह को मेरी आँख खुल करें। हजरत अली से किसी ने पूछा कि अली, पूरी जिंदगी आपको मौत की फिक्र रहती है, कोई ऐसा दिन, कोई ऐसी रात भी गुजरे कि आपको मौत की फिक्र ना हो? तो हजरत अली ने क्या फरमाया? हजरत अली ने फरमाया कि पूरी जिंदगी के अंदर मेरे को सिर्फ उस रात सुकून की नींद आई जिस रात मेरे नबी ने फरमाया था कि एक रात मेरे बिस्तर पर लेट जाओ। उस रात मेरे को यकीन हो गया कि आज रात चाहे जमीन फट जाए, चाहे आसमान गिर जाए, मेरे को मौत नहीं आ सकती, क्योंकि ये मेरे नबी का फरमान है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकलते हैं और सूरह यासीन की तिलावत करते हुए मुट्ठी में मट्टी उठाते हैं और वो मट्टी उन काफिरों की तरफ फेंक देते हैं जो नंगी तलवारें लेके खड़े होते हैं। वो देखते हैं कि कब अल्लाह के नबी निकलेगा और हमला करेंगे। अल्लाह के नबी उनके सफों से गुजर जाते हैं और हरम शरीफ के अंदर आकर हतीम वाली जगह पर 2 रकात नफल अदा करते हैं। अभी मैं साथियों से कुछ मालूमात लेता हूँ कि हरम शरीफ में कोई साथी बताएगा कि हतीम वाली जगह कौन सी है?
बहुत सारे साथियों को पता है, जिन साथियों को इल्म नहीं उनको बता दूं कि खाना काबा से जो छोटी दीवार बनी हुई है जिसके ऊपर रहमत का प्रणाला मिजाब रहमत, उसको हतीम वाली जगह बोलते हैं। उस जगह पर नफल अदा करना ऐसा है जैसे आपने खाना काबा के अंदर जाकर नफल अदा कर दी। अगर आपको मौका मिल जाए तो उस जगह पर जरूर नफल अदा कीजिएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतीम वाली जगह पर नफल अदा किए। मर्द हजरात को इशा की नमाज के बाद वहाँ टॉप पर टाइम देते हैं और ख़वातीन को फजर की नमाज के बाद, और वो भी आपको ख़वातीन को तहज्जुद के टाइम पे जाना पड़ेगा। उनका एक ग्रुप बनाते हैं, फिर ग्रुप की सूरत में ख़वातीन को अंदर में हतीम वाली जगह पर लेके जाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हतीम वाली जगह पर नफल अदा किए और गिर गिरा के दुआ मांगी कि अल्लाह ये मेरा पसंदीदा शहर, बदयाशी शहर, छोड़ने को दिल तो नहीं चाहता लेकिन ये मक्का के लोग रहने नहीं देते। देखिए मदीना मुनव्वरा किस तरफ है, हमारी बैक साइड पे पहुंच गई, यानी कि इस तरफ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत किधर फरमाई, तैफ की तरफ। ये अभी जो ये रास्ता है इसको तरीकुल हिजरा बोलते हैं, यानी हिजरत वाला रास्ता। अभी हम यहाँ पर ज़ियारत करेंगे जबल सोर, गारे सोर की। इसी जगह पर आपने उलमा इकराम से सुना होगा कि एक मकड़ी ने जाला बुना था और एक कूतरी ने अंडे दिए थे। ये वाकया भी इसी जगह पर, और यहाँ पर एक सांप वाला वाकया भी हुआ था। इंशाल्लाह गाड़ी के अंदर पूरा इंशाल्लाह वाकया बताऊंगा। अभी हम ये ज़ियारत करते हैं जबल सोर, गारे सोर की। उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम आगे मैदान अरफात में इंशाल्लाह जाएंगे। वहाँ पर इंशाल्लाह मस्जिद निमरा में भी आपको टाइम देंगे और उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे जबल रहमत पे। अभी हम इधर नीचे उतर के ज़ियारत करते हैं। यहाँ पर हम 10 मिनट के लिए उतरेंगे, ज़ियारत करेंगे, दुआ मांगे, इंशाल्लाह फिर आगे मैदान अरफात में चलेंगे। क्योंकि इस पहाड़ के ऊपर गार तक पहुँचने के लिए एक नौजवान साथी को कम से कम 3.5 से 4 घंटे दरकार है। अगर हम इसके ऊपर चले जाएं तो फिर हम बाकी मकामात नहीं दे सकते। वैसे भी आजकल तकरीबन ये 1 महीने से इसको बंद किया हुआ। क्यों कि यहाँ पर तकरीबन 2 से 3 महीने के दरमियान में यहाँ पर वो लिफ्ट लगाएंगे, इसीलिए पूरा यहाँ पर काम चल रहा है। अगर आप वैसे भी इंफरादी तौर पर भी आए तो अभी इस तरफ नहीं आना। अगर आपका प्रोग्राम बना हुआ है तो उसको अभी प्रोग्राम को कैंसिल करना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर नहीं जाने देते, फिर आपका टैक्सी का किराया भी लगेगा। इसीलिए गारे हीरा पे आप जा सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर आप टैक्सी करके अलग से नहीं आना, क्योंकि ऊपर जाना अभी बंद किया हुआ है। अभी हम इधर नीचे खड़े होकर ज़ियारत करते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे मैदान अरफात में चलेंगे। सारे साथी मेरे साथ उतरेंगे, ज़ियारत करेंगे। जब साथी वापस आए तो अपनी अपनी सीट पे बैठना है, ताकि आपको पता चले कि आपका साथी साथ वाला आ गया कि नहीं आया, क्योंकि हमने और भी मकामात पर इसी तरह उतरना है, इसी तरह फिर गाड़ी में बैठना है। ये 8602 गाड़ी का नंबर सब भाई नोट कर लेंगे। इधर हम नीचे उतरते हैं, ज़ियारत करते हैं। ये स्टैंड है, यहाँ पर गारे सोर पर जो आते हैं यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। सुबहान अल्लाह, इस वक्त हम गारे सोर के बिल्कुल सामने खड़े हैं। अल्लाह गनी। आगे लिफ्ट वगैरह लगाई जा रही है, जिसकी वजह से गारे सोर को फ़िलहाल बंद किया गया है। अल्लाह अकबर। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर आपके इश्क पर कुर्बान जाएं। कितनी बुलंदी पर ये गार है। यहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कंधों पर उठाकर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ पर लेकर गए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। काफ़ी बुलंदी पर ये पहाड़ी है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे बुलंद पहाड़ है, जिसकी बुलंदी 5413 फीट है। और बिल्कुल आखिर में टॉप के ऊपर देखिए आपको 2 बड़े पत्थर पड़े हुए नजर आएंगे। राइट साइड पे छोटा है, दरमियान से पूरा सा आपको खुला नजर आ रहा है, और उसके दूसरी तरफ जो आपको एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये जो बड़ा पत्थर है ये गार के ऊपर पड़ा हुआ है, और इस गार के नीचे जगह है कि 2 आदमी बैठ कर नफल अदा कर सकते। इसके अंदर खड़ा होने की जगह नहीं है। अगर आप इस तरह देखिए तो इस तरह यमन है। उस वक्त अल्लाह के नबी ने हिजरत किधर फरमाई थी? मदीना से। कहाँ गए थे? मदीना। मदीना किस तरफ है? मदीना इस तरफ है। हालांकि जाना तो मक्का जब छोड़ा मदीना जाना चाहिए ना। अपोजिट क्यों चले? कि मुशरिकीन काफिरों को पता था कि मुसलमानों का नबी जब भी मक्का छोड़ेगा मदीना जाएगा। मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या था? यसरब, यानी बीमारियों का घर। जब अल्लाह के नबी उस सरजमीन पर पहुँचे तो अल्लाह पाक ने उस मट्टी में भी शिफा रखी, इसीलिए तो उसको खा के शिफा भी बोलते हैं ना। ये हमारा ईमान है ना भाई। जो मुशरिकीन काफिर पूरी रात से नंगी तलवारें लेकर खड़े होते हैं, वो देखते हैं कि आज दिन चढ़ गया, मुसलमानों का नबी अपने घर से नहीं निकला, तो घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली आराम फरमा रहे हैं, तो उसी वक्त वो एक इनाम रखते हैं कि आज जो मुसलमानों को नबी को ढूंढ के लाएगा उसको 100 इनाम ही दी जाएंगे। तो इनाम के लालच में जो मुशरिकीन काफिर होते हैं ना, मक्का के अंदर चारों तरफ फैल जाते हैं। जब ढूंढते ढूंढते सुमार तक पहुँचते हैं तो सैयदना उनकी आहट आवाज़ सुनते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये काफिर बहुत बड़ी तादाद में, हम तो सिर्फ 2 हमारे करीब पहुँच चुके हैं। तो अल्लाह
के नबी क्या फरमाते हैं, जिसका कुरान पाक में जिक्र है, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ऐ अबू बकर गम न करो, हम दो नहीं हम तीन हैं, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह पाक ने फिर कैसे आसमान पैदा फरमाए, एक मकड़ी को हुक्म दिया, उसने उस पर आकर जाला बुना, और एक कबूतरी को हुक्म दिया, उसने उस पर आकर अंडे दिए। जब मुशरिकीन काफिर गार की तरफ देखते हैं तो ये देख कर वापस पड़ जाते हैं कि भला इसके अंदर कोई जा सकता है, अगर कोई जाता है तो ये जाले भी टूटे होते, ये अंडे भी टूटे होते। इसी जगह पर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा, उस वक्त उनकी उम्र 11 साल थी, आपके लिए खाना लेकर आती है। वो जब सहाबा इकराम आते थे तो बकरियों के रेवड़ के बहाने आते, यानी बकरियाँ चराना तो एक बहाना था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार भी करते और बकरियाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि नबी की प्यार करते। देखिए भाई, हम अपने होटल से चलते जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या पहाड़, लेकिन हम यहाँ पर आकर इस पहाड़ को क्यों ज़ियारत कर रहे हैं, क्यों इस जगह पर आकर खड़े हैं, कि जब पर अल्लाह के नबी का क़याम हुआ था, अल्लाह के नबी के कदम मुबारक लगे, इसी निस्बत से हम इधर खड़े होकर दुआ मांगते हैं। इंशाल्लाह फिर आगे आपको मस्जिद निमरा पे टाइम देते हैं, आगे इंशाल्लाह फिर जबल रहमत पे आपको ज़ाहिर करते हैं। या अल्लाह तुझे इस जगह का वास्ता जहाँ पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक लगे, जिन्होंने दुआ के लिए कहा, सबकी दिल की नेक आरजुओं को पूरा फरमा, बीमारों को सेहत कामिला अजला अता फरमा, परेशान हालों की परेशानी को दूर फरमा, हम सब को दिली सुकून और क़ल्बी इत्मीनान अता फरमा, दोनों जहां की भलाई नसीब फरमा, खात्मा बिल खैर अता फरमा। या अल्लाह तुझे इस जगह का वास्ता देकर कहता हूँ, मालिक मौला तमाम बीमारों को सेहत अता फरमा, मेरे माँ बाप की, मेरे घराने की, तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। गार हिरा की हमने नीचे से ज़ियारत कर ली है, अब गाड़ी में बैठते हैं और आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सी जगह पर गाड़ी हमें लेकर जाती है। हमारी वीडियो के साथ बने रहिए। इस मुक़द्दस मकाम की ज़ियारत की है, इस पहाड़ का नाम है जबल सौद। जी जी ओके। हाजी साहब, जो साथी बुजुर्ग वगैरह नहीं उतर सके, अभी सीधे हाथ की तरफ दोबारा फिर सब साथी जो है ये तो है जो ये सीधे हाथ की तरफ अभी माशाल्लाह आपको एक पहाड़ नजर आ रहा है, ये मक्कातुल मुकर्रमा का सबसे बुलंद पहाड़, और बिल्कुल टॉप के ऊपर देखें आपको एक बड़ा पत्थर जो नजर आ रहा है, इसको सोर क्यों बोलते हैं, अरबी के अंदर बैल की पुष्ट को सोर बोला जाता है, कि बैल की पुष्ट की शक्ल का जो आपको बड़ा पत्थर, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत फरमाई, जी ज्यादा करने, अच्छा, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने 3 दिन और 3 रातें क़याम किया था, और जब मामला ठंडा हो गया तो उसके बाद सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ ऊँटनियों पर हिजरत फरमाई थी। जब रास्ते में चलते हुए आ रहे होते हैं ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कभी भागकर आगे हो जाते, कभी पीछे हो जाते, कभी दाएं हो जाते, कभी बाएं हो जाते, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर क्या मामला, कभी आप भागकर आगे हो जाते हो, कभी पीछे हो जाते हो। तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान जाऊँ, जब मैं आगे से खतरा महसूस करता हूँ मैं भाग के आगे हो जाता हूँ, जब मैं पीछे से खतरा महसूस करता हूँ तो मैं भाग के पीछे हो जाता हूँ, कि अगर कोई दुश्मन वार करे तो सबसे पहला वार मुझ पर हो, मेरे नबी को कुछ ना हो। जब चलते चलते इस पहाड़ के दामन में पहुंचते हैं ना, देखिए सर आज तो हम ये वीआईपी रास्ते देख रहे हैं, हम एसी गाड़ी में बैठे हैं, कितने सुकून से आके ज़ियारत कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं पहाड़ों से ये कैसे नाहमवार रास्ते होंगे, पथरीले ज़मीनें होंगी। तो सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चल चल के पाँव मुबारक पर जख्म आ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं। आज हम एक उम्रा करते हैं तो हम अपनी टांगें पकड़ कर बैठ जाते हैं कि पता नहीं हमने कितना बड़ा काम सारे अंजाम दे दिया। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से रह जाते हैं और गार के अंदर पहले खुद दाखिल होते हैं। क्या देखते हैं कि एक बहुत पुरानी गार है, कहा जाता है कि एक सांप जो बहुत अरसे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए इस गार के अंदर बैठा होता है। उसने 70 के करीब सुराख किए थे कि अगर एक सुराख से मेरे को जगह नहीं मिलेगी तो मैं दूसरे सुराख से अल्लाह के नबी का दीदार करूँगा। सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को नहीं पता होता, वो उन सुराखों को पत्थरों के जरिए बंद करते हैं। सुराखों को इसलिए बंद करते हैं क्योंकि मोज़ी जानवर मेरे नबी को नुकसान न पहुंचाए, उन सुराखों को पत्थरों के जरिए बंद करते हैं। जब गार के अंदर पत्थर भी नहीं मिलते ना, तो फिर अपनी चादरों मुबारक के टुकड़े टुकड़े करके उन सुराखों को बंद करते हैं। कुछ रिवायत में तो ये भी मिलता है कि अपना कुर्ता मुबारक उतार के उसके टुकड़े टुकड़े करके उन सुराख को बंद करते हैं, ताकि फिर भी वो बच जाते हैं, एक सुराख फिर भी बच जाता है। उस सुराख पर सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अपनी ईंट उठा रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थके होते हैं, सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की गोद में सर रखते हैं और नींद आ जाती है। वो कैसा आलम होगा, वो कैसा मंजर होगा। जो सांप तो जब सारे सुराख उसको बंद मिलते हैं तो उसको एक सुराख से उसको इंसानी जिस्म की खुशबू आती है, वो उससे डसता है इसलिए कि मेरे को रास्ता दो नबी का दीदार करने को। तकलीफ तो हो रही है लेकिन हरकत नहीं करते। जब दूसरी बार डसता है फिर भी हरकत नहीं करते। जब तीसरी बार सांप अपना पूरा ज़हर बोलता है तो सैयदना हज़रत अबू बकर
निकलते हैं वो आंसू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ते हैं, तो अल्लाह के नबी की आंख खुल जाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर तुझे घर छोड़ने का गम है या बच्चे छोड़ने का? सैयदना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अर्ज़ करते हैं, ना मुझे घर छोड़ने का गम है ना बच्चे छोड़ने का, एक मूज़ी जानवर है जो मुझे बार बार डस रहा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू बकर वो मूज़ी जानवर सांप है जो बहुत अरसे से मेरे दीदार के लिए इस गार के अंदर बैठा हो, तो वहाँ से अपनी ईंट ऊपर उठा लो। कहा जाता है कि वो सांप बाहर निकलता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम अर्ज़ करता है, ज़ियारत करता है, वापस चला जाता है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना लवाम दाम उस ईंट मुबारक पर लगाते हैं, उसी वक्त वो तकलीफ खत्म हो जाती है, उसी वक्त वो ज़हर खत्म हो जाती है, और ईंट मुबारक ऐसे हो जाती है जैसे कि सांप ने डसा ही ना हो। इंशाल्लाह अभी हमने ये जबल सोर की ज़ियारत की है, इसके बाद इंशाल्लाह हमारी जो आगे जो ज़ियारत आ रही है, ये वो ज़ियारत है जिस जगह पर हमारे हुज्जाए किराम हज पर आते हैं और हज के रकान अदा करते हैं। अभी हम सीधे मैदान अरफात में जा रहे हैं। मैदान अरफात, अरफा जिसके मानी पहचान किए, जिस मैदान में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तौबा की होती थी। अल्लाह पाक फरमाता है 9 ज़िलहज को अगर कोई भूले से भी मैदान अरफात के अंदर आ जाता है तो मैं उसकी भी बशा फरमा देता हूँ। अगर किसी के गुनाह दरख्तों के पत्ते के बराबर है, 9 ज़िलहज को अगर कोई मैदान अरफात के अंदर आ जाता है तो मैं उसकी भी बशा फरमा देता हूँ। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें 9 ज़िलहज को भी मैदान अरफात के अंदर आने की सआदत नसीब करें, आमीन। इंशाल्लाह अभी हम सीधे मैदान अरफात के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले मस्जिद निमरा की तरफ जो फकत हज की मस्जिद है, जिसके 6 मीनार, 3 गुंबद और 64 दरवाजे, वो मस्जिद पूरा साल बंद रहती है। साल में सिर्फ एक दिन खुलती है 9 ज़िलहज को। उस मस्जिद के अंदर एक अजान दी जाती है, हज का खुतबा पढ़ा जाता है और 2 नमाजें, नमाज ज़ोहर और नमाज असर कसर नमाज अदा की जाती है। मस्जिद निमरा की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे जबल रहमत, रहमत का पहाड़, जिसके दामन में 2 वाक़यात हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा खुतबा कहाँ दिया? मस्जिद निमरा वाली जगह पे, और एक कस्वा नामी उठने पे बैठ के जबल रहमत के दामन में खड़े होकर अपनी उम्मत के लिए तवील दुआ मांगी। उलमा इकराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में सबसे तवील दुआ जो मांगी वो जबल रहमत के दामन में। कभी हाथ उठा लेते थे और कभी हाथ नीचे कर लेते, अपनी उम्मत के लिए रो रो के दुआ मांगी। इंशाल्लाह भी हम सीधे मैदान अरफात के अंदर जा रहे हैं। सबसे पहले मस्जिद निमरा की ज़ियारत करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे जबल रहमत में इंशाल्लाह आपको ज्यादा टाइम देंगे। अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो हम देखें हम अजीजिया के अंदर पहुंच चुके हैं। अजीजिया कुछ हुज्जाए किराम को पता होगा कि वो एरिया है, वो इलाका है जहाँ पर हमारे अपने हुज्जाए किराम इंडिया पाकिस्तान से जो आते हैं वो उनको यहाँ पर जो है ना रैशे बिल्डिंगें दी जाती हैं। जब आपको दाएं बाएं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये पूरी जगह अजीजिया में आती है। तो इधर से फिर एक बस सर्विस चालू की जाती है, बसों के जरिए हजिस्तान जो है हरम में जाते हैं। अभी थोड़ा आगे क्रॉस करेंगे, ये सारा जो आगे आपको जो एरिया नजर आ रहा है ये पूरा अजीजिया है। और राइट हाथ में देखेंगे तो आपको सीधे आपकी तरफ एक मस्जिद है, मस्जिद राजी। राजी एक बैंक है, उसके मालिक ने ये तामीर की थी। ये मक्कातुल मुकर्रमा में 3री बड़ी मस्जिद है और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत मस्जिद है। हर नमाज के बाद इसके अंदर दर्स दिया जाता है। और ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी मस्जिद, जी ये अभी राइट हाथ में सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम, उसके बाद मस्जिद निमरा जब हम जाके ज़ियारत करेंगे। और ये राइट हाथ में आपको मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद राजी। इंशाल्लाह अभी थोड़ा सा फासला है, आगे चल के जैसे जैसे ज़ियारत आ रही है इंशाल्लाह आपको फिर इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील से अदा करूंगा। एक नेकी करता है उसका आप साहब कितना है? 1 लाख के बराबर है। पहले तक हम हदूद हरम के अंदर ही मौजूद थे। अभी तवज्जो करेंगे तो आपको ये दोनों तरफ एक बाउंड्री नजर आएगी। अभी हम हदूद हरम को क्रॉस करेंगे, राइट साइड से भी और दूसरे तरफ से। अगर साथी इधर से देखेंगे तो आपको सब साथ आसानी से नजर आएगी कि आपको वो एक बाउंड्री नजर आ रही है। जिस तरह मस्जिद आयशा जाते हैं ना, जिस तरह जैसे ही मस्जिद आयशा उसकी उस जगह पर हदूद हरम है, और ये देखिए ये बाउंड्री आपको नजर आ रही है। यानी कि मैदान अरफात जो है ये हदूद हरम से बाहर है। अभी हम हदूद हरम से बाहर आ चुके हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा भी आपको नजर आएगी, जिसके अंदर इस्लामिक तालीमात दी जाती है। ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा अभी आपके ये राइट हाथ में सीधे आपकी तरफ आ रही है। और ये नहीं कि यहाँ पर इधर से लोग पढ़ते हैं, बल्कि पूरी दीन का इल्म हासिल करते हैं। अभी सब भाई तवज्जो करेंगे तो आपके ये राइट हाथ में सीधे आपकी तरफ ये मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा, जब आप अपने राइट हाथ में देखेंगे। थोड़ा सा आगे चलेंगे इंशाल्लाह तो मैदान अरफात में इंशाल्लाह हम दाखिल होंगे। आपके ये राइट हाथ में मक्कातुल मुकर्रमा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया उम्मुल कुरा देखेंगे। जामिया उम्मुल कुरा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? अरफात स्टार्ट है, बदायतुल अरफात अरबी में लिखा हुआ है। यानी ये मैदान अरफात
अरफात की हद बंदी के साइन बोर्ड है। 9 ज़िलहज को हुजाए किराम इस मैदान के अंदर इकट्ठे होते हैं। अभी ये एक साइन बोर्ड नहीं है, इस मैदान के ये चारों तरफ लगे हुए हैं। अभी हमने मैदान अरफात के अंदर ये दाखिल नहीं हुए, मैदान अरफात के अंदर इंशाल्लाह हम दाखिल होंगे तो मैदान अरफात के अंदर मस्जिद निमरा की ज़ियारत करते हैं। ये मैदान अरफात है, 9 ज़िलहज को हुजाए किराम इस मैदान के अंदर इकट्ठे होते हैं, एक ही रंग में 2 चादरों में लिपटे साहब, यानी कि एहराम की हालत में, और उनकी जुबान पर एक ही तलबिया होता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। क्या अल्लाह हम हाजिर हैं, तेरे हुक्म के मुताबिक हाजिर हैं, तो वहदा ला शरीका तेरा कोई शरीक नहीं। अल्लाह के हुक्म से लाखों के तादाद में हुजाए किराम इस मैदान के अंदर इकट्ठे होते हैं। आज अगर अल्लाह का हुक्म नहीं है तो इस जगह पर कोई नजर नहीं आता। इस मैदान के अंदर 25 से 30 लाख का मजमा इकट्ठा होता है। अगर इस मैदान के अंदर 25 लाख की बजाय लोग डबल भी हो जाए, यानी कि 50 लाख भी आ जाए, तो उस दिन ये मैदान वसी हो जाता है, फैल जाता है, यानी इसी मैदान के अंदर ही समा जाते हैं। इसीलिए तो उलमा किराम इसको रोज़े महशर का मैदान भी कहते हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें रोज़े क़यामत भी इस मैदान के अंदर सुरख़ फरमाए। और कुछ रिवायत में मुल्क शाम का जिक्र भी है, और उलमा किराम फरमाते हैं कि उस दिन इसकी हदें इराक और शाम को छोड़ेंगी। अभी इंशाल्लाह हम मैदान अरफात में दाखिल हो रहे हैं। मस्जिद निमरा, देखिए भाई, मस्जिद निमरा का ताल्लुक हज के साथ है। आप ये ना सोच रहे हैं कि मस्जिद खुली होगी हम वहां जाकर अंदर नमाज पढ़ेंगे, नहीं, उसका ताल्लुक हज के साथ है। 9 ज़िलहज को मस्जिद खुलती है, उस मस्जिद के अंदर एक अजान दी जाती है, हज का खुतबा पढ़ा जाता है, और 2 नमाजें, नमाज ज़ोहर और नमाज असर, वो भी कसर नमाज, यानी कि ज़ोहर की 2 रकअत और असर की 2 रकअत, बस। बाद में मस्जिद के अंदर ना ही कोई ईदैन की नमाज, ना कोई जुमे की नमाज, कोई नमाज वहाँ पर नहीं होती सिवाय हज के वक्त। इसके अलावा अभी हम नीचे उतरेंगे, ज़ियारत करेंगे। अगर कोई साथियों का वजू है तो आप 2 रकात नमाज पढ़ सकते हैं। अगर हमें इन स्टेशन के करीब होते हैं उनको इनके टिकट दिए जाते हैं, बाकी आने सवाल को बसों के जरिए मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में लेकर आते हैं। तो साथी तवज्जो फरमाएंगे, इन पौधों के अंदर आपको कुछ पौधे जो है नीम के तहत भी नजर आएंगे। ये पाकिस्तान के सदर जनरल ज़िया उल हक साहब ने 1985-1986 में सऊदी हुकूमत को 10 लाख पौधे तोहफे के तौर पर दिए थे। दरख्त लगाना तो वैसे भी सदका जारिया है, उन्होंने इस मुकद्दस सरज़मीन पर दरख्त लगाए। देखिए, पहले आज से 10 से 15 साल पीछे चले जाए तो हुजाए किराम इन दरख्तों की छांव के नीचे ही हज का एक रकान पूरा करते थे, यानी अरफात के अंदर गुजारा। लेकिन अभी यहाँ पर एक वसी इंतजाम हुजाए किराम के लिए खैमों का किया जाता है, यानी VIP खैमे लगाए जाते हैं, उसके अंदर AC होते हैं ताकि हुजाए किराम को किसी किस्म की दिक्कत पेश ना, ताकि हुजाए किराम सुकून से एक हज का फरीज़ा अदा कर सके। हज का एक अहम रुकन आज़म अदा करने के लिए हुजाए किराम मैदान अरफात के अंदर इकट्ठे होते हैं। अगर अभी हज़रत तवज्जो फरमाएंगे, ये सामने देखेंगे तो ये साइन बोर्ड नजर आएंगे। अभी हम उस मुकद्दस सरजमीन पर दाखिल हो रहे हैं जिस सरजमीन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगी, और इसी सरजमीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की तौबा कबूल हुई थी। दाखिल होंगे तो सबसे पहले मस्जिद निमरा की ज़ियारत करेंगे, जो फ़कत हज की मस्जिद है, जिसके 6 मीनार, 3 गुंबद और 64 दरवाजे। ये मस्जिद जो है पूरा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ, और इसी मस्जिद वाली जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया था, और हर साल जो हज का खुतबा दिया जाता है वो भी इसी मस्जिद के अंदर दिया जाता है। बड़ा है जो खिलाफत उस्मानिया दौर के अंदर तामीर की गई थी। सुबहान अल्लाह, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्जिद निमरा मैदान अरफात के अंदर। ये मस्जिद निमरा, यहाँ पर हज का खुतबा भी दिया जाता है, और यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर यहाँ पर खुतबा इरशाद फरमाया। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इस मस्जिद में सिर्फ अरफात के दिन 2 ही नमाज़ें होती हैं। ये मस्जिद बंद ही रहती है यहाँ पर, और कोई नमाज नहीं होती सिवाय अरफा के दिन यहाँ पर हज का जो खुतबा है वो दिया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं मस्जिद फ़िलहाल बंद है, यहीं बाहर ही लोग नवाफिल वगैरह अदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हज के मौके पर अल्लाह ताला हमें सआदत अता फरमाए, ताकि हम इस मस्जिद की अंदर से भी ज़ियारत करें, और मैदान अरफात यहाँ पर मैदान महशर भी कायम होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस जगह के सदक़े अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैदान अरफात के अंदर ये जो मस्जिद निमरा है उसके मनाजिर आप देख रहे हैं। सुबहान अल्लाह, यहाँ पर जितने भी उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए लोग आए हैं, सारे अपनी अपनी गाड़ियों पर इस मुक़द्दस जगह की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको बार बार इस जगह की
زیارت یہاں پر حج کے دوران اللہ تعالی ہمیں آنے کی سعادت عطا فرمائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. تو ساتھ ساتھ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو گاڑیاں یہاں پر چلتی ہیں 10 ریال لیتی ہیں اور کئی جگہوں کی یہ زیارت کرواتی ہیں. اگر آپ نے بھی زیارت کرنی ہے تو ان بڑی گاڑیوں والوں سے رابطہ کریں. اپنے جو ہوٹل وغیرہ ہیں ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں تو یہ آسانی کے ساتھ آپ کو ہر جگہ پر لے کر جائے گی 10 ریال کے اندر. صبح صبح 8 بجے یہ تقریباً گاڑیاں نکلتی ہیں اپنے ہوٹل وغیرہ سے اور 12 بجے کے قریب آپ کو واپس اپنے ہوٹل میں چھوڑ دیتی ہیں. یہ باقی دروازے وغیرہ بند ہے؟ جی بند. یہ سارا پورا سال یہ بند رہے گی، صرف حج پر کھلے گی. یہ جو سائن بورڈ نظر آ رہا ہے نا آپ کو، اس کی سیٹ میں جس کے آگے والا تھا وہ مسجد عمرہ کا خود کا بحر ہے. اچھا. وادی اورانا میں، یعنی کہ اس کا یہ آپ نے بولا ابھی مکے میں جو تیسری مسجد جو راستے میں آپ نے دکھایا بڑی مسجد ہے، یہ اس سے چھوٹی ہے، یہ بڑی ہے، وہ اس کے بعد وہ ہے دوسرے نمبر. یہ دوسرا نمبر. کتنے بندوں کو یہاں پہ نماز کی؟ اس میں تقریباً کم از کم 2.5 سے 3 لاکھ حجاج کرام آتے ہیں. 2.5 سے 3 لاکھ اس میں. اور باقی جتنے بھی ہوتے ہیں نا حجاج کرام 20 لاکھ آئے، 25 لاکھ آئے. تو یہ میدان ابھی ہم شروع میں ہے نا. یہ دیکھو یہ سائن بورڈ. اب تھوڑا آگے جائیں گے پھر آگے چاروں طرف یہ میدان عرفات ہے. اپنے قیمتی ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے. یہاں پر انشاءاللہ آپ کو 25 سے 30 منٹ کا ٹائم دیا جائے گا، آدھے گھنٹے کا. تو سب ساتھ اس چیز کا وقت کی جو ہے نا وہ پوری پابندی کریں گے. یہاں پر کچھ ہمارے ساتھی جو پہلی بار آتے ہیں کیا کرتے ہیں، جا کر پتھروں پہ نام لکھتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، کپڑے لگاتے ہیں. یہ ہمارے اسلام کا ہے. ہم وہ کام کریں گے جو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اللہ کے نبی نے یہاں پر کیا عمل کیا تھا، اس کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی. اور اس کے دامن میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی توبہ قبول تھی. حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اللہ ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر آج تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پرست ہیں. اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور 350 سال بعد جبل رحمت کے دامن میں ان کی ملاقات ہوئی. محترم اسمان، آپ اس مقدس سرزمین پر آئے ہیں، اللہ پاک نے ہمیں بلایا اس سرزمین پر. ہم اپنا اس مقدس جگہ پر کھڑے ہو کر اچھی اچھی نیتیں کریں کہ اللہ جس طرح آج ہم اس مقدس سرزمین پر 5 وقت کی نماز کی پابندی کر رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بھی جا کر 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے. جس طرح آج ہم اس مقدس سرزمین پر گناہوں سے بچ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم اپنے گھر میں بھی جا کر گناہوں سے بچیں گے. محترم اسما دیکھیں، یہ ابھی آپ کو چاروں طرف جو ہے یہ میدان عرفات نظر آئے گا. اس میدان کے اندر ایک دن کے لیے خیمے لگائے جاتے ہیں. وہ خیمے پھر جو ہے وہ کور کر دیے جاتے ہیں. ابھی دیکھیں گے، ابھی آپ کو یہ دائیں بائیں جو ہے یہ لوہے کے جو ہے آپ کو خیمے نظر آئیں گے. ان خیموں میں جو ہے پھر حجاج کرام پورا دن گزارتے ہیں اور پھر غروب آفتاب یعنی کہ مغرب کے ٹائم اس میدان سے وہ نکلتے ہیں. جبل رحمت پہ جا رہے ہیں. سب ساتھیوں سے ایک ریکویسٹ ہے بھائی، پہلے ہم جن مقامات پر اترے ہیں تو میں نے کسی ساتھی کو یہ نہیں بتایا کہ آپ ساتھ میں جانا. یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. اپنے خواتین کا بزرگوں کا ہاتھ پکڑ کر رکھنا ہے، اکیلے نہیں جانا. اگر کوئی ساتھی اکیلے جائے گا. بہت بڑی تعداد میں یہاں پر گاڑیاں اور لوگوں کا ہجوم ہے. یہاں پر اندازہ لگائیں ابھی اتنا رش ہے تو حج کے دنوں کے اندر یہاں پر کتنا رش ہوگا. اللہ اکبر. یہ بھی میدان عرفات ہے. میدان عرفات کی دوسری سائیڈ ہے جہاں پر جبل رحمت ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ سامنے جبل رحمت ہے. سبحان اللہ. یہ جبل رحمت ہے. یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضور علیہ السلام نے یہاں پر دعائیں کی. آج ہم بھی یہاں پر دعا کر رہے ہیں. پوری امت مسلمہ کے لیے یہاں پر دعائیں کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. اے پاک پروردگار عالم، تیری اس مقدس جگہ پر مالک و مولا، یہ اللہ کے نبیوں کی جگہ ہے. مالک و مولا، یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. حضور علیہ السلام نے دعائیں کی اور اللہ کے نبی یہاں پر تشریف لائے. مالک و مولا، اس جگہ کا واسطہ مالک و مولا
ان پاک ہستیوں کا واسطہ مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ تجھے اس جبل رحمت کا واسطہ مالک و مولا ہماری گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا رحمان، یا کریم، یا رحیم، اے مالک و مولا تجھے تیرے شان کریمی کا صدقہ مالک و مولا تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر نصیب فرما، بے دروں کو در نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کی دل کی تمام نیک آرزوؤں کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے والدین کو صحت عطا فرما، میرے ماموں جان، خالہ جان، میرے عزیز و اقارب، ہماری بہن نور فاطمہ ہے مالک و مولا، میری بیوی بچے مالک و مولا سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، تمام پریشانیاں تکلیفیں مصیبتوں سے نجات عطا فرما، تمام زمینی آسمانی بلیات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم تجھے اس جگہ کا واسطہ مالک و مولا ہمارے جتنے بھی فوت شدگان ہیں اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالک و مولا سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ مالک و مولا میرے دادی دادا نانی اور جو بھی عزیز و اقارب میں سے میرے بھائی محمد حامد جو اس دنیا سے چلے گئے مالک و مولا سب کی درجات کو بلندی عطا فرما، ماموں یعقوب، اماں مابی اور جتنے بھی مالک و مولا ہمارے خاندان کے ہیں، بابا شریف ہے مالک و مولا سب کے درجات کو بلند فرما، مالک و مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، مالک و مولا ہماری بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، پوری امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ مالک و مولا یہ بڑی ہی پاک جگہ ہے مالک و مولا، یہ وہ سرزمین ہے، وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی مالک و مولا اس توبہ کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، روضہ رسول کی بار بار زیارت نصیب فرما، بار بار ان جگہوں کی زیارت نصیب فرما، حج کے دنوں کے اندر مالک و مولا اس جگہ کی زیارت نصیب فرما، حج کے دنوں کے اندر مالک و مولا میدان عرفات میں آنا ہمیں نصیب فرما۔ اے مالک و مولا تو بڑا غفور الرحیم ہے، اے مالک و مولا تو بڑا غفور الرحیم ہے، مالک و مولا تو بخشن ہار ہے، مالک و مولا ہماری بخشش فرما دے، مالک و مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندائی میرا، مالک و مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ اکبر، سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ آئے ہیں مالک و مولا سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی دل کی نیک آرزوؤں کو پورا فرما، جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں مالک و مولا سب کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان۔ اے مالک و مولا عذاب قبر سے ہم سب کی حفاظت فرما، مالک و مولا جو مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں بن مانگے عطا فرما، میرے والدین کو صحت عطا فرما، میرے بھائی کو صحت عطا فرما، میری بہنوں کو صحت عطا فرما، جنہوں نے دعا کے لیے کہا نہیں کہہ سکے سب کو صحت والی زندگی عطا فرما، میرے نمازیوں نے جنہوں نے دعا کے لیے کہا اور جنہوں نے کہا مالک و مولا سب کی دل کی نیک حاجات کو پورا فرما، نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، جبل رحمت کی ہم نے یہاں سے زیارت کی، انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو انشاءاللہ العزیز جبل رحمت کے اوپر چل کر آپ کو اوپر مکمل زیارت کروائیں گے، کیونکہ اس وقت ہم گاڑی پر جو زیارتوں کے لیے آئے ہیں انہوں نے ہمیں آدھے گھنٹے کا یہاں پر وقت دیا ہے، تو ہمارا آدھا گھنٹہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہونے والا ہے، تو اس لیے ہم گاڑی کی طرف چلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ہم رہیں اور ہماری گاڑی جو ہے وہ چلی جائے تو بعد میں ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، تو لہٰذا ہم اپنی گاڑی کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر آپ عوام کا جمع غفیر دیکھ سکتے ہیں، یہ حج کے علاوہ اتنا رش ہے تو حج کے دنوں میں آپ اندازہ لگائیں یہاں پر کتنا رش ہوتا ہوگا، کچھ گاڑیاں ادھر کھڑی ہیں اور کچھ گاڑیاں یہاں پر کھڑی ہیں،
یہ راستہ آگے کو چلے جائیں تو پھر مسجد نمرہ یہاں پر آ جاتی ہے. سبحان اللہ. میدان عرفات ہے. حجائے کرام اس میدان کے اندر غروب آفتاب یعنی کہ مغرب کے ٹائم تک رکتے ہیں. مغرب کے ٹائم اس میدان سے نکلتے ہیں. ان کو اس میدان سے نکلتے ہوئے رات کے 9 بجے 10 بجے 12 کیوں نہ بجے نماز مغرب اور نماز عشاء میدان مزدلفہ میں جا کر ادا کرتے ہیں. اس میدان کے اندر نماز مغرب اور نماز عشاء ادا نہیں ہوتی. اس میدان کے اندر صرف ظہر اور عصر ہی ادا ہوتی ہے. ابھی ہم انشاءاللہ آگے میدان مزدلفہ جائیں گے. اور میدان مزدلفہ وہ میدان ہے جس میدان میں حجائے کرام ایک رات کھلے آسمان تلے قیام کرتے ہیں اور اس سے پہلے انشاءاللہ نہر زبیدہ کی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ میدان عرفات کی حدود سے بحر ہے. اس کے آگے والے 2 مینار اور 3 گنبد میدان عرفات کی حدود سے بحر ہے وادی اورانا میں. اورانا اس جگہ کو کہا جاتا تھا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کو پر چڑھ کر آخری حجۃ الوداع خطبہ ارشاد فرمایا تھا. اس لیے جب مسجد تعمیر کی گئی تو اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ میدان عرفات کی حدود سے بحر تعمیر کیا گیا ہے. ابھی انشاءاللہ ہم آگے میدان مزدلفہ جا رہے ہیں اور اس سے پہلے انشاءاللہ نہر زبیدہ کی زیارت کریں گے. خواب کیا دیکھتی ہے کہ ایک ڈرونا خواب دیکھی. خواب دیکھنے کے بعد وہ ڈر گئی. خواب کی تعبیر کے لیے اس نے اپنے نکرانے خادمہ کو امام مسجد کے پاس بھیجا اور اپنے خادمہ سے کہا کہ جب خواب پوچھنے لگا تو انہیں یہ نہ بتانا یہ خواب ملکہ کا ہے بلکہ اپنا نام بتا کے پوچھ لینا. جب وہ خادمہ امام مسجد کے پاس گئی خواب کی تعبیر پوچھی تو اس نے وہی الفاظ بولے. تو امام مسجد نے کہا سچ بتاؤ یہ خواب کس کا ہے. جب دوبارہ پوچھا تو آخرکار وہ نکرانی نے بولا یہ خواب میری ملکہ کو ہے. تو امام مسجد نے کہا جب اپنی ملکہ سے جا کے بولو کہ اللہ پاک آپ سے کوئی نیک کام لینا چاہتا ہے. جب ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ المکرمہ میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حجائے کرام بہت مشقت حالت میں حج کرتے ہیں. ان کے ایک ہاتھ میں پانی ہے دوسرے ہاتھ میں سامان. پانی کی قلت کی وجہ سے حجائے کرام کی بے ہوشی کی حالت ہے. تو ملکہ زبیدہ نے سوچا کہ پتہ اللہ پاک میرے سے یہ کوئی نیک کام لینا چاہتا ہے کہ میں ادھر پانی کا بندوبست فرماؤں. کہتے ہیں کہ وہ اپنے قبیلے والے کے پاس جاتی ہے. خلیفہ ہر ساتھ مشورہ کر رہے بولتے یہ ناممکن کام ہے لیکن اللہ پاک کی قدرت دیکھیں اللہ پاک نے ان سے یہ نیک کام لینا تھا. اس مقام تک پانی پہنچ رہا تھا. ابھی سب اس وقت توجہ فرمائیں گے. یہ ابھی سیدھے ہاتھ کی طرف پہاڑ جیسے شروع ہو رہے ہیں. اس پہاڑ کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک پتھروں کی بنی دیوار نظر آئے گی. اسی کو نہر زبیدہ بولتے ہیں جو ملکہ زبیدہ نے حجائے کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا. یہ آج کل کی بات نہیں ہے بلکہ یہ 1000 سال پہلے کی بات ہے. یہ اسلام کے ایک اہم ورثہ ہے جو ملکہ زبیدہ نے حجائے کرام کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا. سیدھے آپ کی طرف دیکھیں سب ساتھی تو آپ کو یہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ جو پتھروں کی بنی دیوار نظر آ رہی ہے اور اس دیوار کے نیچے آپ دیکھیں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے سوراخ نظر آئیں گے. انہیں سوراخوں سے حجائے کرام پینے کے لیے وضو کے لیے طہارت کے لیے پانی استعمال کرتے تھے. ملکہ زبیدہ وہ نیک دل خاتون تھی جس کے گھر میں ہر وقت 300 طلبہ کرام تلاوت قرآن پاک فرماتے تھے. اور اس کا سفر 800 کلومیٹر کا اس کا ایک لمبا سفر ہے. عراق کا شہر بغداد دریا دجلہ سے نکلتی ہے. عراق شام اور یمن سے ہوتے میدان عرفات مزدلفہ میں ابھی بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے. اور کچھ لوگ بولتے ہیں اس کا پانی طیف سے آتا تھا. طیف کو 2 راستے جاتے ہیں ایک سیل کبیر والا اور ایک حدہ والا راستہ یعنی جس راستے سے پہاڑی راستہ ہے چھوٹی گاڑی اور حدہ سے آگے ایک وادی نعمان. ادھر بھی اس کے کچھ نشانات باقی ہیں. اور طیف میں پانی جمع ہوتا تھا جس طرح اپنے ڈیم بنائے جاتے ہیں اس طرح پانی جمع ہوتا. پھر اس کے آگے یہ میدان عرفات مزدلفہ میں اور اس کا پانی حرم شریف کے اندر جہاں کلاک ٹاور بنا ہوا ہے وہاں تک اس کا پانی چلتا تھا. 1200 سال تک حجائے کرام اس نہر سے پانی پیتے رہے ہیں. یہ اس وقت کی بات ہے جب حجائے کرام پیدل حج پر سفر کرتے تھے اور کئی مہینے لگ جاتے تھے. اس وقت حجائے کرام کے لیے ملکہ زبیدہ نے اور اس وقت کوئی نہ کوئی مشینری تھی نہ کوئی ٹرینیں تھی. ابھی بھی آپ دیکھیں آپ کو یہ سیدھے آگ کی طرف یہ نظر آ رہی ہے جو ملکہ زبیدہ نے حجائے کرام کے لیے پانی کا انتظام فرمایا تھا. اور دوسرے ہاتھ کی طرف یہ بھی آپ کو میٹرو ٹرین جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا یہ مینا مزدلفہ عرفات میں چلائی جاتی ہے. ابھی ہم آگے میدان مزدلفہ میں داخل ہوں گے. وہ میدان جس میدان میں حجائے کرام ایک رات کھلے آسمان تلے قیام کرتے ہیں اور میدان مزدلفہ میں جا کر نماز مغرب اور نماز عشاء چاہے رات کا کوئی بھی حصہ جو ہے چاہے یعنی کہ رات کے 10 بجے 12 بجے 12 کیوں 9 بجے نماز مغرب اور نماز عشاء میدان مزدلفہ میں جا کر ادا کرتے ہیں. یہ سائن بورڈ نظر آئیں گے. یہ جامنی کلر کے سائن بورڈ جو ہے یہ میدان عرف مزدلفہ کی حد بندی ہے. اور اپنے بائیں ہاتھ کی طرف دیکھیں جیسے ہی
मैदान मुजल्फा में हम दाखिल हो रहे हैं तो अभी तो बाएं हाथ की तरफ ये मुजल्फा का स्टेशन नंबर 1 नजर आ रहा है। इस तरह के इस मैदान के अंदर 3 स्टेशन है, ये देखिए। और सीधे हाथ में देखिए आपको ये कुछ मुख्तलिफ रास्ते नजर आ रहे हैं, ये सुर्ख कलर के, ये वो रास्ते हैं जिन रास्तों से हुजाए किराम पैदल मैदान अरफात से मुजल्फा में पहुंचते हैं। और अभी देखिए आगे आपको ये वाइट नजर आ रहे हैं, और ये रास्ते इधर आकर खत्म नहीं हो जाते, इससे आगे फिर ये मीना, मीना से आगे जमरात, जमरात से आगे हरम। हज पर अगर कोई हाजी साहब ये चाहे कि मैं अरफात से जो पैदल हरम में चला जाऊं तो उस दिन पैदल चल के भी जा सकते हैं। और इसी मैदान के अंदर एक मस्जिद आ रही है, मस्जिद मशरुल हरम, जिसका जिक्र कुरान पाक में दूसरे सुपारे में सूरह बकरा में। इस मस्जिद के अंदर 3 नमाजें अदा होती हैं। 9 ज़िलहज को नमाज मगरिब और नमाज इशा, और 10 ज़िलहज को फजर की नमाज अदा की जाती है। अभी हमारी ये सीधे हाथ की तरफ ये मुजल्फा की मस्जिद आएगी, मस्जिद मशरुल हरम। सब हजेंगे जिसका जिक्र कुरान पाक में दूसरे सुपारे में सूरह बकरा में। अभी आप अपने ये राइट हाथ में ये मस्जिद है, मस्जिद मशरुल हरम। जिस तरह मैदान अरफात के अंदर मस्जिद निमरा की अभी हमने ज़ियारत की थी, उसका ताल्लुक भी हज के साथ है। और इसी तरह ये मस्जिद है, इस मस्जिद में पूरे साल में नमाज मगरिब और नमाज इशा और उसके बाद रात का क़याम हुजाए किराम इस मैदान में करते हैं। फिर फजर की नमाज यहाँ पर अदा करते हैं और फिर तुलूए आफ्ताब के बाद इस मैदान को छोड़ते हैं, यानी कि यहाँ से फिर जाते हैं, जाकर मीना में क़याम भी करते हैं और जमरात शैतानों को कंकरे भी मारते हैं। इसके बाद अभी हम आगे मीना में दाखिल होंगे। और एक और चीज़, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अभी आप नीचे दाएं बाएं नीचे देखेंगे तो आपको ये जो है कंकरियाँ पड़ी नजर आएंगी। शैतानों को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं वो कंकरियाँ भी इसी मैदान से उठाई जाती है। कितनी? 49 और 70 कंकरियाँ भी उठाते हैं। जो हाजी साहब 3 दिन कंकरियाँ मारते हैं वो इधर से 70 कंकरियाँ, जो ये छोटी पानी पीने वाली बोतल होती है उसके अंदर डालते हैं। और फिर जो हाजी साहब 4 दिन कंकरियाँ मारते हैं, क्योंकि पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियाँ मारी जाती हैं, फिर दूसरे दिन तीनों शैतानों को 7-7, और फिर तीसरे दिन यानी 12 ज़िलहज को भी तीनों शैतानों को। और फिर जो हाजी साहब 13 ज़िलहज को कंकरियाँ मारते हैं, फिर इधर से 70 कंकरियाँ उठाते हैं। ये चारों तरफ पूरा मैदान मुजल्फा है। ये साइडों पे आपको जो व्हाइट कलर की जो बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये वजू का वाशरूम का इंतजाम है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़ का इंतजाम नहीं होता। मुजाहिद किराम खुले आसमान तले मैदान मुजल्फा में वो क़याम करते हैं। उस रात चाहे कोई गरीब है, अमीर है, वजीर है, बादशाह का अगर एक रात खुले आसमान तले मैदान मुजल्फा में वो क़याम करते हैं। उनके पास एक जानमाज और एक चटाई होती है। रास्ते से हट कर जहाँ भी उनको जगह मिल जाती है, ये जो अभी ये रास्ते नजर आ रहे हैं खुली जगह, यहाँ पर मुजाहिद किराम अपनी चटाई बिछा लेते हैं और इसी जगह पर फिर रात का क़याम करते हैं। नहीं इबरत की नजर से देखेंगे वादी मुआसर, जिसका जिक्र कुरान पाक में सूरह फील में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील, व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। अबाबील किसको बोलते हैं? परिंदों को। कि अल्लाह पाक ने अबाबील परिंदों के जरिए एक बहुत बड़े लश्कर को नेस्तनाबूद किया था। अबरहा यमन का बादशाह इस नीयत से आया था, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि मैं अल्लाह ताला के घर को गिराने जा रहा हूँ। जब वो इस मुकाम पर पहुंचा तो अल्लाह पाक ने अबाबील परिंदों के जरिए उसके लश्कर को नेस्तनाबूद किया। तो जब हम वहाँ से हम गुजरेंगे तो इस्तग़फ़ार पढ़ते गुजरेंगे, क्योंकि वो अज़ाब वाली जगह है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, कहते हैं कि जब बाबरा मक्कातुल मुकर्रमा में दाखिल हुआ 60-70 हज़ार का लश्कर लेकर, उसने एक लश्कर क्या था, उसके अंदर बड़े बड़े हाथियों को लश्कर लेकर आया, क्योंकि ताकि कोई ताकतवर चीज़ आएगी तो उसको मैं इस हाथियों के जरिए हटाऊंगा। तो जब वो आगे मक्कातुल मुकर्रमा के हदूद में दाखिल होता है तो उसने एक शरारत की। क्या किया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के और कबीला कुरैश के जानवर ऊँट अपने कब्जे में कर ली। जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खबर हुई तो खाना काबा की दीवारों के साथ लिपट कर दुआ मांगी कि अल्लाह तो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। ये अबरा 60-70 हज़ार का लश्कर लेकर आया। कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अबरा के पास गए और अपने जानों का, अपने ऊँटों का मुतालबा किया तो अबरा हैरान हो गया। बोला, अब्दुल मुत्तलिब तू इतना बड़ा सरदार, मैंने तो सोचा तू मेरे साथ जंग करेगा, तूने तो सिर्फ अपने ऊँट मांगे। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाया कि ऊँटों का मालिक मैं हूँ, जिसको तू गिराने हैं वो अपने घर को बचाने की पूरी ताकत रखता है। उलमा इकराम फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊँटों को लेकर घर नहीं पहुँचे थे कि अल्लाह पाक ने एक अबाबील का लश्कर भेजा, जिसको वो कंकरे लगती थी उसी जगह पर वो नेस्तनाबूद होता है। ये ज़बान ये मीना शुरू हो चुका है। ये न्यू मीना है। जब मीना के अंदर जगह कम पड़ गई, उलमा इकराम ने फतवा दिया, उस वक्त ये खेमे लगाए गए। ये जगह लेकिन अभी आपको ये मीना के खेमे नजर आ रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे तो अभी हम ओल्ड मीना में दाखिल हो जाएंगे, और जैसे ही हम वादी मुअस्सर से गुजरेंगे, वो ज़ियारत नहीं है, इबरत वाली जगह है, तो हम वहाँ से इस्तग़फ़ार पढ़ते गुजरेंगे। मीना का पहला मेट्रो स्टेशन है जहाँ से अभी हम गुजर रहे हैं। जैसे हम गुजरेंगे तो आपके ये सीधे हाथ की तरफ जो है आपको ये खाली जगह नजर आएगी।
जिस जगह पर अल्लाह ताला का अज़ाम नज़र था। अल्लाह पाक ने अबाबील परिंदों के ज़रिए एक बहुत बड़े लश्कर को नेस्तनाबूद किया था। हाँ, जिस बार देखिए ये सीधे आपकी तरफ देखिए, आपको ये जो खाली जगह नजर आ रही है ना, ये आपको दरख्तुल जान, यहाँ पर अल्लाह ताला का अज़ाम नाज़िल हुआ था। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु। थोड़ा सा आगे चलेंगे फिर हमारे साथ साथ फिर हमें ये खैमे नजर आएंगे। ये देखिए, और इसके बाद हमारी आगे सबसे बड़ी ज़ियारत आ रही है मकाम इस्माइल, जिस जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्त जिगर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटाया और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई। अल्लाह के हुक्म से वो छुरी नहीं चली। छुरी की क्या मजाल थी कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के एक पास थे, क्योंकि अल्लाह का हुक्म नहीं था। रिश्ते जन्नत से दुम्बा लेकर आए, वो ज़िबा हुआ। वो फिजान अदब था कि मकतब की करामत सिखाए किसने इस्माइल को अदाब कितने साल हुआ अल्लाह पाक ने बेटा दिया? 80 साल। और ख्वाब में आया कि सबसे प्यारी चीज़ की कुर्बानी करो। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इस पूरी कायनात में सबसे प्यारी चीज़ तो मेरा बेटा है, तो उन्हीं को कुर्बान करने के लिए कहा ले ये मीना के पहाड़ों में। सब साथी इधर देखें बाएं हाथ की तरफ, ये पहाड़ के ऊपर अभी आपके एक मीनार गुंबद नजर आएगा। ये है मकाम इस्माइल, जिस जगह पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आए और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई। अल्लाह के हुक्म से वो छुरी नहीं चलाई। इधर मेरी तरफ देखें, वो सामने मैं हाथ से इशारा कर रहा हूँ, वहां पर ये सुर्ख कलर का बोर्ड के सीध में देखें आप, नजर आ रहा है? ये है मकाम इस्माइल। अल्लाह वालम, इसके बारे में उलमा इकराम से सुना है कि यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर आए और अपनी आंखों पे पट्टी बांध के उनकी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो छुरी काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रही? छुरी को अल्लाह का हुक्म नहीं है। जो हम हर साल कुर्बानी करते हैं, पैरवी करते हुए कुर्बानी अदा करते हैं। जो इकराम हज पर आते हैं, पैरवी करते हुए कुर्बानी अदा यहाँ पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई गई थी। अल्लाह अकबर। लेकिन आपकी जगह यहाँ पर एक मेंढा ज़बह हो गया जो जन्नत से भेजा गया था। अल्लाह अकबर कबीरा। बाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो इसके ऊपर जाने की इजाजत इसलिए नहीं आती, इधर के जो बादशाह है ना, इनके ये शाही महल बने हुए हैं। यदि आपको खजूरों के पेड़ दरख्त नजर आ रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर जाने की किसी को भी इजाजत, पूरा खासा तारों से और बड़ी बड़ी दीवारों से इसको कवर किया हुआ है। चाहे ये पहाड़ है, चाहे पीछे पहाड़ गुजर गए, इसके ऊपर जाने की किसी को भी इजाजत, चाहे जो हज पर यहाँ पर आकर 5 दिन क्याम भी करते हैं। और सीधे हाथ की तरफ अभी आपके ये सीधे हाथ की तरफ ये अभी हम उस मुकद्दस मकामात से गुजर रहे हैं जिस जगह पर हर साल अल्लाह पाक के नेक बंदे आते हैं और हज के रकान अदा करते हैं। तो हम भी इस मुकद्दस मकामात से गुजरते हुए अल्लाह पाक से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह आज हम ये इन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह हमें हज के लिए कबूल फरमा, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैदान अरफात के अंदर हमने मस्जिद निमरा की ज़ियारत की, मैदान मुज़दलिफ़ा के अंदर मस्जिद मशअर हराम, और मिना के अंदर एक मस्जिद आ रही है मस्जिद खैर। रवायत में आता है कि मदीना मुनव्वरा से 70 अंबिया इकराम आए, उन्होंने इस जगह पर नमाज उठाई। और कुछ रवायत में ये भी मिलता है कि जब पर 70 अंबिया इकराम मदफून है, तो जब हम उधर से गुजरेंगे तो एहतरामन जाते हुए सलाम भी अर्ज करेंगे। अल्लाह ताला हमें इस मुकद्दस ज़मीन पर बार बार बुलाए। ये सीधे हाथ की तरफ देखिए, अभी हम व्हाइट खैमे देख रहे थे, जब अल्लाह ताला हमें दोबारा इस मुकद्दस ज़मीन पर बुलाए तो देखिए इस तरह के खैमे फिर पूरे मिना में देखने को मिलेंगे। यानी आने वाले चंद सालों में पूरे मिना में फिर इस तरह के खैमे पूरे मिना में देखने को मिलेंगे। ये डबल स्टोरी खैमे है, ये देखें, ये शीशे वाले जो आपको खैमे नजर आ रहे हैं ना, अभी तो हम देखें ना पीछे हम पूरे व्हाइट खैमे ही देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर पूरे मिना में इस तरह के खैमे देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा भी आगे चलेंगे तो मैंने आपको, जब हम जबल सूर की ज़ियारत करने के बाद निकले थे, तो मैंने आपको बताया कि हम अजीजिया में दाखिल हो गए। ये आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखें, जो सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं, इस पहाड़ की दूसरी जन्म अजीजिया है। हाजी सबान को यहाँ पर इसलिए ठहराया जाता है कि जब मीना मुज़दलिफ़ा में उनको आना हो तो उनके लिए आसानी है कि जैसे ये पहाड़ गुजरे, इस पहाड़ के अंदर से ये जो है ना सुरंगें बनेगी, इधर से फिर हाजी सबान जो है पैदल है इन मीना में आ जाती है, ताकि वो मीना में रात का क़याम करते हैं और फिर सुबह को तुलुए आफ्ताब के बाद जमरात को कंकरियाँ मारकर चाहे वो हरम में दिन गुजारे चाहे अपने होटल में जाकर वक्त गुजारे। मोहतरम इस्मान, अभी आप अपने बाएं हाथ की तरफ देखिए, ये मीना की मस्जिद है, मस्जिद खैर, ये जिसका जिक्र कुरान पाक में 29वें पारे में सलाम अर्ज कर ले, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया इकराम। कहा जाता है कि यहाँ पर 70 अंबिया इकराम मदफून है। और उसके आगे देखिए भाई, ये आपको 4 मंजिला बिल्डिंग नजर आ रही है, ये बरामदे आपको नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको नारा, ऊपर एक व्हाइट कलर की सफेद की छतरी है, इसके अंदर है जमरा शैतान।
आप सोचेंगे पता नहीं शैतान किस शक्ल का बना हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। इसके अंदर 3 दीवारें हैं, जिस तरह जबल रहमत को एक पिलर बना हुआ है ना, इसके अंदर 3 दीवारें हैं। हाजिस्तान जो है वो दीवारें किस तरह की, पत्थरों की बनी हुई है। हाजिस्तान उसके अंदर जाकर उस दीवार को 7 कंकरियां मारते हैं, यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसके अंदर जाने के बाद इधर से फिर रिटर्न नहीं आने देते। क्यों नहीं आने देते? आपने 2017 में कलमे सुना था, बहुत सारे मुजाहिदीन इंडिया पाकिस्तान शहीद हुए थे। तो ये यहाँ पर ये वाकया, यहाँ से जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जो रास्ते चल रहे हैं, यहाँ पर ये वाकया हुआ था। इसीलिए जब शैतान का जिक्र आए तो औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। ये सीधे आपकी तरफ है, ये मीना का खूबसूरत मंजर देखें भाई। वादी मीना के खैमे लाखों के तादाद में मुजाहिद कराम इन खैमों में आकर 3 दिन क्याम करते हैं। 3 दिन रहते हैं, खाने पीने का, किचन का, वजू वगैरह का, हर चीज़ का इंतजाम इन्हीं खैमों में किया जाता है। और ये वाटर प्रूफ खैमे, ना इसके अंदर पानी जाता है ना इसको आग लगती है। और इस खैमे के अंदर चाहे हाजी साहब कितना भी VIP पैकेज लेके आ जाए, इस खैमे के अंदर इतनी जगह मिलती है जितने कब्र के अंदर एक इंसान को जाती है, इससे ज्यादा जगह नहीं मिलती। अभी हमने मीना क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एक पहाड़ के अंदर से गुजर रहे हैं। जैसे हम गुजरेंगे तो दोबारा फिर हमारे ये सीधे आपकी तरफ दोबारा फिर हमें ये मीना का खूबसूरत मंजर दोबारा फिर नजर आएगा। के अंदर ये सड़क बनी हुई है जहाँ से ये गाड़ी गुजर रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार इन मुक़द्दस ज़ियारात देखने की सआदत अता फरमाए। अभी जैसे ही हम ये कन्नूर से निकलेंगे तो आप अपने सीधे हाथ की तरफ एक लम्हे के लिए ये मीना का खूबसूरत मंजर दोबारा फिर देखेंगे। गाड़ी यहाँ पर गाड़ी स्लो करना बहुत ममनू है, यानी कि इतनी स्पीड में हमारे पीछे से गाड़ियाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम गाड़ी को स्लो करके सब साथी जो है ये मीना का मंजर एक दफ़ा देख लें और एक दफ़ा देखते हुए सुभान अल्लाह पढ़े। ये देखिए, कहते हैं कि खूबसूरत वादियों में से एक वादी का नाम है वादी ये मीना। ये देखिए, एक लम्हे के लिए पीछे देखें सब साथी, सुभान अल्लाह पढ़े। ये देखिए पूरी वादी मीना नजर आ रही है, यहाँ से पूरा खैमा का बस्ती है, यहाँ से पूरी वादी मीना नजर आती है। ये देखो ऊपर तक पहाड़ों पे भी आपको ये खैमे नजर आ रहे हैं। लाखों के तादाद में मुजाहिद कराम इन खैमों में आकर 3 दिन क्याम करते हैं, 3 दिन रहते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह अभी हमारी जो आगे ज़ियारत है वो है जबल नूर गारे हीरा, जिसकी बुलंदी 2700 फीट है, जिस जगह पर कुरान पाक की पहली वही नाज़िल हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान इक़रा व रब्बुकल अकरम। पहली 5-6 आयात इसी जगह पर नाज़िल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिन और के रातें यहाँ पर इबादत फरमाया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ौजा हज़रत खदीजा तुल कुबरा आपके लिए हरम शरीफ से मक्का तुल मुकरमा की शदीद गर्मी में खाना लेकर आया करते थे। अरब की अमीर तरीन खतून थी, जिनका 4 अरब मुल्कों में तिजारत का काम चलता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में आई तो उन्हें सारा का सारा माल इस्लाम की खातर गरीबों में तकसीम कर दिया। इंशाअल्लाह अभी हम आगे जबल नूर गारे हीरा की ज़ियारत करेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत करेंगे, फिर उसके बाद मस्जिद जिन, फिर मस्जिद फतह और मस्जिद शजर की इंशाअल्लाह ज़ियारत करेंगे। जो मकामात हम देखते हुए आ रहे हैं ये सारे हज के मकामात हैं, और इसके अंदर एक वो जगह जहाँ पर हुजाए किराम की कुर्बानी के जानवर ज़िबा किए जाते हैं। आप अपने ये सीधे हाथ की तरफ, जैसे ये पहाड़ से गुजर रहा है, आप अपने सीधे हाथ की तरफ देखेंगे आपको लास्ट तक सुर्ख ब्लू येलो कलर नजर आएगा। ये पूरा एरिया कुर्बान गांव का, यहाँ पर हुजाए किराम के अभी देखें ये लास्ट तक आप मुख्तलिफ कलर से नजर आ रहे हैं आप। ये लास्ट तक जो है ना जितना एरिया है यहाँ पर हुजाए किराम के ये स्लाटर हाउस बने हुए, यहाँ पर हुजाए किराम के कुर्बानी के जानवर ज़िबा होते हैं, यानी बकरे, ऊंट, जो भी जानवर, गाय, बैल यहाँ पर ज़िबा होते हैं। और आप ये ना सोच रहे हैं कि हाजी साहब खुद यहाँ छुरियाँ लेके फिर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाजी साहब अपने खैमों में रहते हैं, यहाँ पर उनको टोकन दिए जाते हैं, उनका टाइम होता है, यहाँ पर हुजाए किराम के हुदूद हरम के नज़ीबा होते हैं, फिर इधर से टाइम दे दिया जाता है, उनको मैसेज आ जाता है, फिर वो अपना एहराम उतार देते हैं। दूसरे हाथ की तरफ आपको ये जो है मालूमात दे रहे हैं, ये बड़े बड़े आपको ये टैंक नजर आ रहे हैं, अरबी में इसको खजान कहते हैं। इसके अंदर पानी जमा होता है। आपको पता है सरजमीन के नीचे जो पानी है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। सऊदी हुकूमत यहाँ पर ये इंतजाम करती है, इसके अंदर पानी जमा होता है। जब हुजाए किराम मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में होते हैं, जैसे पानी हुजाए किराम को सप्लाई दिया जाता है, बल्कि पूरे एरिया में यहीं से पानी जो है वो सप्लाई होता है। अब इंशाल्लाह हम आगे जबल नूर गारे हीरा की ज़ियारत करेंगे। थोड़ा सा फासला है, देखिए इसमें मैं आपके साथ एज ए गाइड आया तो मक्कातुल मुकरमा की हम अपने साथ 2-3 ऐसे तबरक़ात, ऐसे मुक़द्दस चीज़ें साथ लेकर आते हैं जिसका हदीस में भी जिक्र है। आपने अजवा खजूर का नाम सुना होगा। ये अल्फाज में अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कहते हैं कि जो आदमी
अजवा खजूर के 7 खजूरें हर रोज खा ले। ये सीधे हाथ की तरफ देखेंगे, मक्कातुल मुकर्रमा का एक खूबसूरत पहाड़ है जिसका नाम है जबले नूर। क्या है? जबले नूर। और इसको जबले कुरान भी बोलते हैं और जबले इस्लाम भी बोलते हैं। कुरान पाक की पहली वही यहाँ पर नाज़िल हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई के दिन और कई रातें यहाँ पर इबादत फरमाया करते थे। यानी उस वक्त नमाज फर्ज नहीं हुई थी, मुराकबे में वक्त गुजारते थे। सब भाई जो है ये सीधी आग की तरफ देखें, जबले नूर गारे हीरा। बिल्कुल टॉप के ऊपर जाने के बाद इधर से 15 से 20 मीटर अंदर है गारे हीरा, जिस गार में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत खदीजा कुबरा आपके लिए मक्कातुल मुकर्रमा से यानी हरम शरीफ से यहाँ पर खाना लेकर आया करते थे। आजकल तो मौसम बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है मक्कातुल मुकर्रमा में, और उस शदीद गर्मी में यहाँ पर खाना लेकर आती थी। ये सीधी आग की तरफ देखें सवाल, यहाँ पर अगर आपके पास वक्त है, टाइम है, अगर आप हिम्मत रखते हैं, सीढ़ियाँ स्टेप चढ़ सकते हैं, तो आप फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद छोटी गाड़ी लें। आपसे गाड़ी वाला कितना पैसा लेगा? 15 या 20 रियाल, यानी एक आदमी का नहीं, जितने आदमी गाड़ी में 4 आदमी बैठेंगे, 5 आदमी, तो गाड़ी आपको कहां तक छोड़ेगी? जहां से इसकी सीढ़ियां शुरू हो रही है। ये देखिए इधर से आपको बल खता हुआ रास्ता नजर आएगा, और बिल्कुल टॉप के ऊपर अभी आपको रास्ते में लोग जाते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल टॉप के ऊपर जाने के बाद इधर से फिर और नीचे आना पड़ता है 15 से 20 मीटर अंदर। ये जो सारा रास्ता आपको पैदल तय करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर आपका 1 घंटा भी लग सकता है, 1.5 घंटा भी लग सकता है जाने जाने में। ऊपर जाए, ज़ियारत करें, नफल अदा करें। इधर से फिर जब आप नीचे उतरेंगे, यानी 1 घंटे में जब नीचे उतर जाएंगे, तो आपको गाड़ी वाले को नहीं रुकवाना, इधर से आपको आसानी से फिर गाड़ी मिल जाएगी। इंशाल्लाह अभी हम आगे जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत करेंगे, एक अजीम शान कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला, फिर उसके बाद मस्जिद जिन की ज़ियारत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है गारे हिरा, यहाँ पर हमने जाना है। अल्लाह उधर सजदा करें, उस तरफ जल्दी जल्दी। पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलात व सलाम पहली आयत करीमा इक़रा नाज़िल हुई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सब्बिक या अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह इस खान का सदका हम सबकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अल्लाह तुझे इस गार का वास्ता, हम सब की परेशानियाँ तकलीफ़ें मुसीबत से दूर फरमा। मेरी बहन और फातिमा को सेहत अता फरमा, मामू जान को, खाला को, मेरे वालिदैन को, सब बीमारों को सेहत कामिला अजर अता फरमा। मेरे वालिदैन की सब की बख्शिश फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा। रब्बी ग़फ़िर वरहम व अन्त खैरुर राहिमीन। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह फिल जन्नह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। आपको एक कब्रिस्तान नजर आएगा, इस कब्रिस्तान का नाम मकबरा अदल है। अभी इंशाल्लाह हम आगे जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत करेंगे। थोड़ा आगे कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारत करते हैं। आपके ये राइट हाथ की तरफ देखिए, जन्नतुल मुअल्ला का ये अजीम शान कब्रिस्तान। ये आपका जन्नत से आपको जो पत्थरों के निशाना नजर आ रहे हैं, ये सब कब्रें हैं। और सलाम अर्ज कर लें, अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। ये दरमियान में ये रास्ता है, इसके 2 हिस्से हैं। अभी जैसे पुल खत्म होगा तो दोबारा फिर आप देखें सीधे हाथ में, तो आपको ये जन्नतुल मुअल्ला का ये अजीम शान कब्रिस्तान दोबारा फिर नजर आ रहा है। ये हमने देखा, और यहाँ पर आप फजर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, ये सामने आपको हरम शरीफ के मैदान नजर आ रहे हैं। इधर से आप आराम से जो है सफ़ा मरवा से बाब इस्लाम से आप आराम से इस कब्रिस्तान में पैदल आ सकते हैं। वाली मस्जिद है मस्जिद जिन, जिस जगह पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों को तालीम दिया करते थे, और जिन्नों की एक जमात ने इस्लाम कबूल किया था। सीधे हाथ की तरफ, और इसके दूसरे फ्लोर पे खवातीन, जो अभी देखें आप ऊपर की तरफ देखें, आपको खवातीन बैठी नजर आएंगी। ये दूसरे फ्लोर पे खवातीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह होती है। सीधे हाथ की तरफ देखें इस बार, ये अभी नमाज का टाइम हो रहा है ना, इसीलिए मस्जिद ये खुली है। बैठे आप जब भी आए तो आपको किसी नमाज के वक्त पे आना पड़ेगा, फिर आप इसके अंदर आकर नफल अदा कर सकेंगे। मस्जिद फतह, जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ
तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर आकर फतह का झंडा लहराया था। आपके सीधे हाथ की तरफ कोने में एक मस्जिद आएगी, मस्जिद फतह, और दूसरे हाथ की तरफ कोने में एक मस्जिद है, मस्जिद शजर। शजर अरबी में दरख्त को बोलते हैं, जहाँ पर एक दरख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर कलमा पड़ा था। ये आमने सामने मसाजिद है, यहाँ तक गाड़ियाँ चलती हैं, इधर से आगे पैदल जो है आप हरम में से यहाँ से आप यहाँ तक से आप आराम से ये मकामात के द्वारा ज़ियारत भी कर सकेंगे। बाएं हाथ की तरफ मस्जिद शजर, कोने में देखें, बाएं हाथ की तरफ कोने में मस्जिद शजर देखें। पहले बाएं हाथ की तरफ मस्जिद शजर अरबी में दरख्त को बोलते हैं, और सीधे हाथ की तरफ मस्जिद फतह। जब 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ, यहाँ पर अल्लाह के नबी ने फतह का झंडा लहराया था जब मक्का फतह हुआ था, ये सीधे हाथ की तरफ। और इसी मस्जिद फतह के साथ कोने में सामने ये पोस्टर आपको नजर आ रही है, इसी पोस्टर से आगे जो है वहां से आप अगर आप पैदल आएंगे तो मैं आपको ये रास्ता बता रहा हूँ, इधर से आप अंदर जन्नतुल मुअल्ला में जा सकेंगे, यानी कि मर्द हजरात को यहाँ से जाने देते हैं। ये सामने देखिए गली नजर आ रही है, इसके अंदर एक दरवाजा गेट लगा हुआ, वहां से जन्नतुल मुअल्ला में आप अंदर जा सकेंगे। और अभी जन्नतुल मुअल्ला की दूसरी जानिब हम ये कब्रिस्तान की ज़ियारत कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। यहाँ पर हज़रत खदीजतुल कुबरा, सहाबाए किराम, हुजूर की अहले बैत, हुजूर के बेटे, उनके मज़ारात हैं। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। एक दरख्त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आकर कलमा पड़ा था। कहते हैं कि एक यहूदी था, जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, कहा कि हम कैसे मान लें कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो आपको मुझे दिखाएं। तो अल्लाह के नबी ने कहा क्या मुझे देखो? बोला कि ये सामने जो दरख्त खड़ा है इसको बोलो कि आपके पास आएगी। तो अल्लाह के नबी ने बोला कि आप खुद ही जाकर बोल दो कि आपको अल्लाह का नबी बुला रहा है। तो कहते हैं कि वो गया तो दरख्त अपनी जड़ें उखाड़ता हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आया और उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन सुभान अभी हमने ये मुकद्दस मकामात की ज़ियारत की है, ये मुकद्दस मकामात अल्हम्दुलिल्लाह है ये, और इसी तरह अपनी गाड़ी जो है तैफ की ज़ियारत के लिए भी जाती है। अगर कोई साथी तैफ के मुकद्दस मकामात की ज़ियारत के लिए जाना चाहता हो और वहाँ से आप एक बड़े उम्रे की नियत भी फरमा सकेंगे। यानी तैफ 120 किलोमीटर का फासला है, वहाँ मस्जिद अब्दुल्ला बिन अब्बास की ज़ियारत करेंगे और उनकी मस्जिद में नफल अदा करेंगे, उनके घर मुबारक की ज़ियारत करेंगे, और उसके बाद जो है उनके कब्र मुबारक पर फातिहा शरीफ पढ़ी जाएगी, और वापसी पे अपने साथ आप एहराम जरूर साथ लेके जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस गाड़ी के ज़रिए हमने मक्के के आसपास जो गाड़ी ये चलती है ज़ियारतें करवाती है, मैंने भी ज़ियारतें की, आपको भी उन मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करवाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बार बार इन जगहों की ज़ियारत करने की सआदत अता फ़रमाए। आप मेरे लिए दुआ करें, मैं इंशाअल्लाह आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।